Hello, long time no see. The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hello dear students, how are you? So welcome to yet another session, and we are learning integration, and in integration we have just finished indefinite integration, and my last class of indefinite integration was super duper important. If you had not attended it, then please go and revise it in that class of indefinite integration, my last class. Okay, we discussed almost all problems of IIT JEE, and we realized that it doesn't require to remember anything while solving JEE problem, right? We realized that problem can be solved just like that with some concepts. Hai ki nahi? Yes? Chalo. On that note, we will begin with definite integration. Today we are going to learn about the fundamentals of how can we solve the problems of definite integration using the concept of methods of transformation, substitution and by parts. But the real meaning of definite integration, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो सबसे असली प्रॉब्लम्स हैं जो जेई में आती हैं वो शुरू होंगी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. दे विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल लर्न इन डेफिनेट इंटीग्रेशन द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज. दे आर सुपर अमेजिंग एंड दैट विल मेक द प्रॉब्लम very simple, very small, very simple, right? But that will start from the next class. Today the basics, and today is going to be a light class. आज कोई बहुत stressful class नहीं होने वाली, ठीक है? वैसे classes stressful होती है क्या मेरी? I hope not. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. This is what we are going to do. After this we are going to learn properties, then more properties, then Newton-Leibniz theorem, summation as integration, and then shortcut tricks and art of solving problems, because shortcut tricks in definite integration काफ़ी easily हो सकती हैं. We'll talk about it later. All right? चलो, let us begin now. Brief about me. I'll not waste time. I did my BTech from IIT Roorkee, started Laksh Institute where taught lots of top students and many students, thousands, tens of thousands of students, and then I started Vedantu where we're using technology to reach to all the students like you. और इसीलिए मैं YouTube पे भी पढ़ाता हूँ ताकि आप सब बच्चे कहीं भी बैठे हो इंडिया में सीख पाओ. और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ that do share with your friends who you think can benefit from Vedantu classes. अगर आप नए हो, if you are new, do subscribe and press on the bell icon so that you get the notifications always. ठीक? And चलो आगे बढ़ेंगे. Always one question come almost every year. So indefinite integration से एक question आता है, not very important. But if you look at definite integration and area under the curve, both require the concepts of definite integration. ठीक है? If last class में हमने देखा doesn't require a lot of formula to remember for JEE problems. Simple. One number getting is not that difficult. Definite and area under the curve are simple topics if you understand conceptually. तो कुल मिला के 3 से 4 प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएंगी if you learn these topics very nicely, right? So this is very important. Cool. चलो आगे बढ़ते हैं. If you have not joined, join the Telegram group as well बच्चों, where discussion happens and all the PDFs of the classes and the assignments are shared on Vedantu app. Very soon a YouTube corner is going to come in the app so that it will become easier for you to find where the content is. कंटेंट टेलीग्राम पे भी शेयर होता है रोज. ठीक है, चलो आ जाते हैं बच्चों. सो लेट अस टॉक अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन. है क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन? लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर. सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों. व्हाट अभी तक हमने किया इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेशन इन एन इंटरवल. देखो ये क्या बोल रहा है, फिर से समझाता हूं मैं आपको. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बच्चों. सो this we had learnt integral fx dx. if it is indefinite integration, ये आता है बच्चों क्या, this comes out to be f of x plus c. It comes out to be f of x plus c. We learned that during indefinite integration. But जैसे ही आप इसकी लिमिट्स लगा देते हो, when you put the limits from a to b of fx dx,
तो बच्चों क्या होता है, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन गोज आउट. क्यों? बिकॉज दिस इज एक्चुअली, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स. ठीक है, चलो प्लस सी भी लगा लो इफ यू वांट, बट अंडर द लिमिट a to b, under the limit a to b, what will happen बच्चों? First you will put the upper limit, that is f of b plus c तो आएगा, this is one entire function. अगर c आप imagine कर रहे हो तो, so f of b plus c, then minus क्या होगा दूसरा, now you will put a, that is f of a plus c. What will happen? एक तरीके से आपका c और c cancel हो गया, c and c gets cancelled out. So what you are left with बच्चों? You are left with f of b minus f of a, right? So in simple words, in definite integration में there is no sense of constant of integration. You are integrating between two limits or in between an interval a to b. So in very simple words, definite integration का चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे? Why are we learning this? वैसे तो सोचो तो इंडेफिनिट है क्या? इट इज जस्ट डूइंग द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड देन पुटिंग द लिमिट. यस, वेरी सिंपली पुट, यस. कोई भी क्वेश्चन है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का, यू कैन एक्चुअली थिंक इट लाइक दिस. पहले इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड देन विल पुट द लिमिट्स ए टू बी. बट व्हाई डू वी लर्न दिस चैप्टर? बिकॉज देयर आर मेनी टेक्निक्स और सर्टेन प्रॉपर्टीज of definite integration that can be used to solve the problem that we will learn as we go ahead. ठीक है, but simply ये क्या है, indefinite integration है under the limits, very simple. तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, let us move ahead from here and let's see the ways of solving it, but today without properties. ठीक है, हाँ, तो कैसे कैसे करेंगे? So we will be discussing three methods today: transformation, substitution and by parts. Today what we are going to do बच्चों, today we are going to do definite as, हम सिंपली आज क्या कर रहे हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना उसको हम कैसे कर रहे हैं, आज हम उसको करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जैसे, एंड विल पुट द लिमिट्स ए टू बी. वेरी सिंपल. सो ये जितने भी मेथड्स हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्सटीट्यूशन, बाय पार्ट्स, बच्चों ये किसके मेथड्स हैं? एक्चुअली दीज आर द मेथड्स ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन बाय इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. उसी को आज रिवाइज करते हैं और लेट अस सी हाउ दे अप्लाई इन द केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बच्चों समझ में आ रहा है आज का पर्पस क्या है क्लास का? आज का पर्पस है डेफिनिट इंटीग्रेशन को करना इंडेफिनिट की तरीके से यूजिंग दीज थ्री मेथड्स एंड पुटिंग द लिमिट्स. एंड इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों हम क्या करेंगे? फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स we will learn properties. We will learn properties of definite. ठीक है, दोनों ही, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको समझ में आना जरूरी है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम्स विल रियली बी फ्रेम्ड इन जेई लेवल. ठीक है, चलो बट आगे बढ़ते हैं. फॉर द कंसेप्ट्स टुडे लेट अस सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स. से अपन शुरू करते हैं विद ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. लेट अस बिगिन विद द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको करना है इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स बिटवीन 0 to पाई. बच्चों करो. दिव्यांशु से सर आपने स्ट्रीम डिले क्यों कर दी है? ऐसा है क्या, डिले हो रही है क्या? ये सनिकेत, वेरी गुड इवनिंग. हाँ बच्चों इधर आ जाओ, इसको करते हैं. भूल जाओ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जस्ट डू इट यूजिंग इनडेफिनिट टू बिगिन विथ. जैसे प्रीतम मोंडल बोल रहा है वहां पे, cos स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं बच्चों? cos स्क्वायर एक्स को आप किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रीतम सही बोला क्या तुमने? सोचो. cos स्क्वायर एक्स तो आप नहीं कर सकते इंटीग्रेट, क्या करोगे बच्चों? कन्वर्ट इनटू cos 2x. एग्जैक्टली व्हाट अक्षर इज सेइंग हियर, राइट? सूरज ने शायद आंसर ही दे दिया. ओके कूल, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. क्या किया अपन ने किया इसको, सबसे पहले इंटीग्रल, मैं भूल जाता हूं अभी लिमिट्स को. आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रॉपर्टीज नाउ, आई एम सिंपली फोकसिंग ऑन cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन. cos स्क्वायर एक्स तो मुझसे नहीं होता, सो आई कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट? ऑल ऑफ यू नो cos 2 थीटा इज 1 प्लस cos 2
1 प्लस क्या होता है बच्चों, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है. सो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इन दिस केस 2x अपॉन 2 dx. नाउ कैन वी इंटीग्रेट इट, यस वी कैन इंटीग्रेट इट. जो करो, करते हैं इसको आगे इंटीग्रेट. सो व्हेन वी इंटीग्रेटेड क्या हो जाएगा, देखो cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. सो cos स्क्वायर x बन गया 1 प्लस cos 2x बाई 2. वेरी सिंपल. सो 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू पाई एंड cos 2x का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू पाई. व्हाट इज द इंटीग्रेशन बच्चों, हाफ तो सबको पता है, इट विल बिकम x बाई 2. इट विल बिकम x बाई 2 अंडर द लिमिट 0 टू पाई. पहले पुट करेंगे पाई, फिर पुट करेंगे 0 माइनस साइन के साथ, प्लस cos 2x, cos का इंटीग्रेशन साइन, क्योंकि 2x है विल डिवाइडेड बाय हाफ. तो बच्चों क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा, sin 2x बाई 2. 2 से 2 और 2 मिलके बना देगा 4 बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई. आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू पुट द लिमिट. लिमिट पुट कर दोगे, हाफ कॉमन आउटसाइड, पहले पुट करेंगे पाई, फिर पुट करेंगे 0, ठीक है, प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 4, बीच में देयर विल बी ए प्लस साइन, राइट. तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2. पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज करेक्ट. यस अनामिका, आर्यन, यस पाई बाई 2 इज करेक्ट. जाना बालाजी, राइट. प्रीत, क्लियर है सबको, एनीबडी इन डाउट. पंकज, ये सिंपल था, जस्ट फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग सेक, राइट. आगे बढ़े, बढ़ जाए, चलो कूल. अभिषेक डोंट वरी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. टुडे इज अ वेरी सिंपल क्लास, डोंट वरी, टुडे इज अ वेरी सिंपल क्लास. ये करते हैं, चलो. दिस इज AIEEE 2004, जस्ट लाइक योर जेई मेंस का पेपर. द लेवल ऑफ AIEEE जो पहले होता था इज लाइक योर जेई मेंस, राइट. सो लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू डू इट. यस छोटू सिंह, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स खत्म हो गए. प्लीज गो एंड रिवाइज ऑल दोज क्लासेस. जयदीप, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, मैं सोचता हूं. यस QU, व्हाई नॉट, यू कैन स्टार्ट. सुनील, क्लास 6 बजे शुरू हुआ, बट यू कैन ज्वाइन इन, नो वरीज. वंश, इट इज फॉर क्लास 12th, but if you're in class 11th you can still do it, no problem. Mauli is saying answer is 2. Shweta is also saying answer is 2. Let's check. हाँ चेक करें. देखो आंसर 0 कौन बोल रहा है, 0 तो हो ही नहीं सकता. I'll explain later. 0 तो हो ही नहीं सकता. देखो ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए. ये लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2. मुझे इस ऊपर sin x प्लस cos x है, बट ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन कि 1 प्लस साइन 2x को बच्चों में क्या लिख सकता हूं. कैन आई राइट दिस एज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. कैन आई राइट इट एज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस 2 sin x cos x sin 2x. एग्री. सो कैन आई राइट दिस एज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, राइट. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑल्दो दिस प्रॉब्लम वाज सिंपल, बट ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ी सी ट्रिकी बन सकती थी अगर मैं लिमिट्स को थोड़ा सा चेंज करता. आई विल कम टू इट, बट डोंट एवर टेक, याद रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, नेवर राइट इट एज एक्स. याद है मैंने आपको फंक्शंस की क्लास में बताया था. ऑलवेज रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉट एक्स बट mod x. And why this? क्योंकि बच्चों अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इफ देर इज एनी डाउट बच्चों, रिवाइज माई सेकेंड क्लास ऑफ functions where I discussed about modulus function a lot. This is super important. Maximum बच्चे हैं गलती करेंगे. So what I will do, ideally speaking, this is under root of something का square. तो बच्चों में इसको कैसे लिखना पसंद करूंगा? I will want to write this as under root 0 से pi by 2. न्यूमरेटर तो ऐसे it is sin x plus cos x का होल स्क्वायर. ठीक है.
डिनोमिनेटर में बच्चों में एक्चुअली लिखूंगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बट अंडर अ मॉड, इसको बच्चों कभी भी मिस मत करना, बट मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, क्यों, क्योंकि बच्चों 0 से π/2 के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सो बिटवीन 0 से π/2, बिटवीन 0 से लेके π/2 आपका साइन एक्स भी पॉजिटिव है, रिमेंबर द ग्राफ, साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव है। सो दिस एंटायर थिंग इज बच्चों क्या, this entire thing is positive. And what did I tell you, if something is positive inside the under root, it opens with a positive sign, it opens with a positive sign. तो बच्चों actually क्या हो जाएगा ये, तो actually you can actually remove the mod. Why? Because whatever that is written inside the mod is positive. यहां तक समझ में आया बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको, इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइम लगा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, आंसर विल बी, कहां गया, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2, जो सब बच्चों ने बोला, ऑल ऑफ यू हैड गिवन द आंसर, नो प्रॉब्लम, आप सबने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था, नो प्रॉब्लम, बट एंश्योर करना ये स्टेप में गलती मत करना। किस स्टेप में बच्चों, ये जो चीज है ना, दिस थिंग, राइट, ये वाली चीज, इसमें गलती मत करना, इट विल बी ऑलवेज बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड। द प्रॉब्लम वुड हैव बिकम कॉम्प्लिकेटेड स्लाइटली अगर मैं लिमिट 0 से π/2 की जगह बच्चों मैं लिमिट्स को 0 से 2π कर देता, तो हैड आई चेंज द लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 2π, तो आपको वो जोन्स आइडेंटिफाई करने पड़ते जहां पे मॉड्यूलस ओपन होगा विद अ प्लस साइन और मॉड्यूलस ओपन होगा विद अ माइनस साइन, based on where sin x plus cos x is positive और where it is negative। ये ऐसे क्वेश्चंस हम आगे जाके बहुत सारे करने वाले हैं, राइट, क्लियर। चलो सबको समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस लर्न, ये करो, चलो प्रैक्टिस के लिए, लेट्स सॉल्व दिस वन फॉर प्रैक्टिस। सत्येंद्र, डिड आई मिस योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क अगेन। जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं मैं आपके डाउट्स देख रहा हूं। दिव्यांशु, डोंट वरी, सिली मिस्टेक तो होती रहती है। शाहिद रिजवी, व्हाट आई सेड वाज कि जब भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है ना बेटा, देन ऑलवेज ओपन द अंडर रूट विद अ मॉड्यूलस साइन। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर is not x, it is modulus of x. Now modulus कैसे ओपन होगा बच्चों, based on x अगर पॉजिटिव है modulus ओपन होगा with a positive sign, and if x is negative modulus ओपन होगा with a negative sign। राघव, डोंट वरी, बहुत टाइम है अभी डूड, लोड मत लो। हाँ, तो प्रीतम ने कुछ तो लिखा है यहाँ पे, आप सब बच्चे क्या बोल रहे हो, क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, नथिंग एल्स, सिंपली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ, तो एक तरीका मेरे को तो समझ में आ रहा है, वो ये, वी लव डिनोमिनेटर एज स्मॉल एज पॉसिबल, सो रेदर देन 1 अपॉन साइन स्क्वायर, वो तो मैं सॉल्व कर लूंगा बिकॉज आई नो द फॉर्मूला ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर, आई नो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर, कॉट, राइट। और इधर बन जाएगा साइन से साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, कॉट, वी कैन ऑल्सो इंटीग्रेट कॉट बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। एनीवेज, चलो लेट्स मूव अहेड, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। मेथड रिमेन्स द सेम, आप सब लोग अब कर ही लेंगे। क्या किया मैंने बच्चों, cos x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। तो मैंने लिखा इसको कैसे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, देन आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। एक तो सिंपल है, एक हो जाएगा सिंपली क्या आपका 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिखेंगे अपन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट। तो वो भी कर लेंगे अपन। तो ये तो बच्चों कितना हो गया, हाफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ यू नो कोसिकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है, कॉट, याद है। एंड ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कैंसिल कर देंगे, आएगा बच्चों क्या, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा,
हाफ बाहर, कोसिकेंट स्क्वायर का बच्चों कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस कॉट। कोसिकेंट स्क्वायर का होता है बच्चों माइनस कॉट, बिकॉज देर इज x बाई टू, सो यू विल ऑल्सो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1/2, सो देर विल बी ए 2 विच इज कमिंग आउटसाइड हियर। सबको पता है ना, जो भी x से मल्टीप्लाई होता है ओरिजिनल फॉर्मूले में उससे डिवाइड कर देते हैं, वी डिवाइड द ओरिजिनल फॉर्मूला का रिजल्ट विथ दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय x। फर्स्ट क्लास ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सबको पता है ये, नथिंग स्पेशल हियर, राइट। और कॉट का बच्चों कितना हो जाएगा, ln x बाई टू, कैसे, ये सबको पता ही है। कॉट क्या होता है, कॉट इज cos x अपॉन sin x इंटीग्रेशन dx, sin x तो सबको पता ही है, आप sin x को पुट कर दोगे t, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t, दिस इज ln t, दिस इज ln ऑफ sin x। क्लियर, ऐसे कॉट का कितना हो जाता है ln sin, बट बिकॉज दिस इज 1/2, सो डिवाइडेड बाय हाफ, सो मल्टीप्लाइड बाय 2, सो बिकॉज ऑफ दिस टू कम्स हियर, बिकॉज ऑफ दिस टू कम्स हियर। आई थिंक ऑल ऑफ यू इज क्लियर। नाउ पुट द लिमिट्स एंड गेट द आंसर। मैं बच्चों बहुत धीरे बोल रहा हूं, मतलब आई एम गोइंग वेरी स्लो, trying to put emphasis on all those small areas where I'm sure you will do silly mistake, so please bear with me, don't feel that I'm going very slow, मुझे पता है यहीं पे गलती करने वाले हो, ठीक है, क्लियर। बस यहाँ पे क्या है, फिर आपने सॉल्व कर दो इसको उठा के, पुट द लिमिट्स। कितना, सबसे पहले पाई पुट करो, कॉट पाई बाई 2 इज 0 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 1 माइनस पुट कर दो ln sin पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 बच्चों कितना होता है, साइन पाई बाई 2 इज 1, ln 1 इज, ये तो 0 हो जाएगा, ln 1 इज 0 माइनस ln 1 बाई रूट 2, ln 1 इज 0, सो इट इज लेफ्ट विथ 1 माइनस ln 2, ठीक है, क्लियर। बढ़ जाए आगे, आई होप इट्स क्लियर। यस, नो, यस, यस ना, यस बोल दो यार, ठीक है, आगे बढ़ते। नाउ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको समझ में आता है ना बच्चों, तो लाइक पे जरूर से प्रेस करना, दैट्स अ फीडबैक फॉर मी। हाँ, सो मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन बच्चों वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होती है, उस पर फोकस करेंगे आज, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाउ टू बी केयरफुल वाइल टेकिंग व्हाट टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना बच्चों। नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, मान लो मुझे करना है इंटीग्रेशन -2 से 2 dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो यू डू नॉट रिक्वायर एनी सब्स्टिट्यूशन, बट आई विल पर्पजली डू अ सब्स्टिट्यूशन टुडे टू टेल यू अ कॉमन मिस्टेक, ठीक। चलो, बाय द वे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। इफ यू हैव टू सॉल्व इट, क्या करोगे आप, इंटीग्रल -2 से 2 dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट विल यू डू बच्चों, आप इसको सीधे फॉर्मूला लगा दोगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला। तो यहाँ पे a की जगह कितना है 2, x की जगह तो x ही है, तो आंसर डायरेक्टली कितना हो गया बच्चों, 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 अंडर द लिमिट्स -2 से 2, व्हेन यू पुट द लिमिट हाफ कॉमन आउटसाइड, tan इनवर्स 2/2 1 माइनस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 is pi by 4 minus of tan inverse -1 is minus pi by 4. So half of pi by 4 minus of minus pi by 4, that is plus pi by 4. Answer is pi by 4. 2 times pi by 4 into half is pi by 4. यहाँ तक तो क्लियर है, नो डाउट, ठीक। अब देवांश इज आस्किंग इसके क्वेश्चंस कहाँ से करूं बेटा, बहुत सारे असाइनमेंट्स तो मैं भी दे दूंगा। बाकी स्टार्ट बाय सॉल्विंग योर आर.डी. शर्मा सब्जेक्टिव। फर्स्ट बुक दैट ऑल ऑफ यू शुड डू is R.D. Sharma subjective, at least solved example, before you jump to your Cengage or Arihant or previous year JEE questions or whatever other book. एक बार R.D. Sharma subjective के solved example बच्चों सब लोग कर लिया करो, hardly takes 1 hour 2 hours to do it, but आपके basics ना बिल्कुल set हो जाते हैं, ठीक है। just सजेशन, उसके बाद आप अरिहंत करो, Cengage करो, कोई भी बुक करो, doesn't matter, because
क्वेश्चंस इन ऑल द बुक्स आर ऑलमोस्ट द सेम. नाउ अब मैं बच्चों इस क्वेश्चन को जबरदस्ती करूंगा. आई विल पर्पसली यूज अ सब्सटीट्यूशन टू डू इट, टू टीच यू टू थिंग्स, हाउ टू यूज अ सब्सटीट्यूशन एंड व्हेन नॉट टू यूज अ पर्टिकुलर सब्सटीट्यूशन. तो आज हम ये सीखने वाले हैं. ठीक है, अभिनव एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे बेटा, आगे तो बढ़े. माय लास्ट की 2-3 क्लासेस आर ऑल एडवांस लेवल क्वेश्चंस, बट टुडे वी आर डूइंग बेसिक्स. ओके, हाँ, अब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं. x इक्वल टू 1/t कर दूं. सो आई एम गोइंग टू डू x इज इक्वल टू 1/t एज सब्स्टिट्यूशन. तो देखो क्या होगा बच्चों. सो व्हाट विल हैपन, हाउ डू वी डू द सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x को 1/t सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं. क्यों? डजंट मेक सेंस. बट टू टीच यू हाउ टू डू सब्स्टिट्यूशन एंड टू टीच यू व्हेन नॉट टू डू अ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, मैं x को अगर 1/t पुट करूं तो बच्चों क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे सब्स्टिट्यूशन को. सबसे पहले आप निकालो dx. 1/t का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, -1/t² dt. राइट, तो बच्चों मुझे पता लग गया इन इंटीग्रल dx अपॉन 4 + x². ठीक है, सबसे पहले तो dx को रिप्लेस करो और x को रिप्लेस करो सब्स्टिट्यूशन में. तो बच्चों क्या आ जाएगा, इंटीग्रल dx की जगह बच्चों कितना आ जाएगा, -1/t², राइट, इंटू 1/, ये कितना हो जाएगा 4 + 1/t² dt. तो यहां तक तो ठीक है, दिस तो इज फाइन. बट बच्चों ये लिमिट्स किसकी थी, ये लिमिट्स किसकी है बच्चों, ये लिमिट्स अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x, द लिमिट्स आर ऑफ x. तो इन योर माइंड थिंक एक्चुअली ये x1 है और एक्चुअली बच्चों ये x2 है. तो जब भी आप इंटीग्रेट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू x dx, ठीक है, तो आपकी जो लिमिट्स होती है बच्चों वो वैल्यूज ऑफ x होती हैं. x इज मूविंग फ्रॉम -2 से 2. बट नाउ व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, नाउ व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू क्या, आजा भाई, विथ रेस्पेक्ट टू t, तो बच्चों किसकी लिमिट्स चाहिए आपको. नाउ यू वांट द लिमिट्स इन द टर्म्स ऑफ t. तो ये है अगर t1 तो बच्चों ये होगा t2. ये समझना बहुत जरूरी है. सो वेन एवर यू डू अ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज चेंज द लिमिट्स. कैसे, x की वैल्यू 1/t है, तो जब x -2 था, when x was -2, तो बच्चों t कितना है, what will be the value of t when x is -2, t बच्चों कितना हो जाएगा, -1/2. राइट, सो व्हेन यू डू अ सब्स्टिट्यूशन लिमिट्स विल चेंज. समझ में आया कैसे, जब x की वैल्यू 2 है बच्चों, इन द केस ऑफ dx व्हेन x की वैल्यू वाज 2, जब x 2 होगा तो t बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2. सो व्हेन x इज 2 द कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट हियर विल बी 1/2. सो नाउ दिस इज योर इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर न्यू इंटीग्रेशन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन. नाउ सॉल्व इट. समझ में आ गया, समझ में आया सबको. ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं. तो कैसे सोचना है, dx के केस में लिमिट थी x1 से x2, राइट. इन द केस ऑफ नाउ dt द लिमिट्स विल बी फ्रॉम t1 से t2. क्योंकि x को आपने t के फॉर्म में पुट किया था, तो लोअर लिमिट को पुट करो x की जगह, यू विल गेट द लोअर लिमिट इन टर्म्स ऑफ t. पुट द हायर लिमिट इन टर्म्स ऑफ x, you will get the higher limit in terms of t, the corresponding limit. बस अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, बट जब इंटीग्रेट करोगे ना तो देखना बड़ा मजा आने वाला है. इंटीग्रेट करोगे, यस मैं आ रहा हूं उसके ऊपर. सूरज व्हाट यू आर सेइंग एंड प्रिया, सूरज व्हाट यू आर सेइंग इज इंपॉर्टेंट, वही तो समझा रहा हूं मैं आपको. कैसे देखते हैं. तो हमने x को 1/t पुट किया तो dx हो गया -1/t² dt. तो इंटीग्रेशन हो गया बच्चों -½ से हाफ, जो मैंने आपको समझाया, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. दिस थिंग व्हेन आई सॉल्व्ड इट फर्दर इट बिकेम -½ to ½ dt अपॉन 4t² + 1, जो आप इंटीग्रेट कर दोगे. वाई एम आई डूइंग दिस, टू शो यू दैट द आंसर विल कम आउट टू बी रॉन्ग. इंटीग्रेट जब किया इसको अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, तो बच्चों इसका आंसर आएगा, आई एम लिविंग द कैलकुलेशन टू यू, आंसर विल कम आउट टू बी -π/4. बच्चों व्हाट वाज द आंसर, व्हाट वाज द ओरिजिनल आंसर, द करेक्ट आंसर बच्चों क्या था, π/4.
बट इस सब्सटीट्यूशन से बच्चों आंसर क्या आ गया, -π/4. वाई? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो वाई वॉज द आंसर रॉन्ग? ठीक है, बिकॉज योर सब्सटीट्यूशन वॉज रॉन्ग. यू कुडंट हैव दैट सब्सटीट्यूशन. आपने बच्चों क्या किया, इंटीग्रल -2 से 2 dx अपॉन 4 + x² वॉज द क्वेश्चन. आपने x को पुट कर दिया 1/t. दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. कैसे, अभी समझाता हूं. Because when your x was going from -2 से 2, right? अगर आप उसको पुट कर दो, अगर आप t को पुट कर दो 1/x, right? तो क्या हो जाएगा, बिकॉज t कितना हो गया 1/x, बट यहां बीच में 0 भी आता है, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है. ठीक है, सो व्हेन यू आर डूइंग इट, यू आर एक्चुअली गोइंग फ्रॉम -half to half, बट रास्ते में आपका क्या होगा, 0, जहां पे वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. कैन नॉट हैपन. योर लिमिट, वेन एवर यू आर डूइंग अ सब्सटीट्यूशन, द न्यू वेरिएबल हैज टू बी कंटिन्यूअस. द न्यू वेरिएबल हैज टू बी कंटिन्यूअस. समझ में आया बच्चों? अगर आप कभी भी ऐसा सब्सटीट्यूशन करोगे जिसके अंदर आपका जो नया वेरिएबल आया है, द न्यू वेरिएबल, इफ इट इज ब्रेकिंग समवेयर, योर सब्सटीट्यूशन विल गिव यू रॉन्ग आंसर. समझ में आया बच्चों? सो क्या है यहां पे क्या हुआ बच्चों, मैंने x को 1/t पुट किया, बट दैट वाज रॉन्ग, हेंस द आंसर वाज रॉन्ग. बट व्हाई वाज द सब्सटीट्यूशन रॉन्ग? बिकॉज x was going from -2 से 2. If you put x की वैल्यू 1/t, then t is going from -half to half, crossing 0 in between, and 1/0 is not defined. जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में 0 हो जाएगी, तब वहां पे t which is 1/x will be not defined. So hence this substitution cannot work. But in the process बच्चों, what did you learn? You learned that while substitution, how does the limits change? बस ये सिखाना था आपको मेरे को. So नोट कर लो बच्चों, नोट दिस डाउन. दिस पेज का जो नोट है वो इंपॉर्टेंट है. सब्सटीट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सब्सटीट्यूशन मस्ट बी एबल टू टेक वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन. कैसे, बता रहा हूं. 0 to 1 √1 + x². Can I use the substitution x is equal to secant t? Yes or no? Can I put the substitution x is equal to secant t? Yes or no? हाँ प्रीतम, वो कर सकते थे. हरिनाथ, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में. What you are asking about breaking into 2 parts? Yes, but let me go in depth before I say yes or no directly. So a lot of you are saying no. Yes, you cannot do it. मतलब no is correct. You cannot do it. क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? What is happening here? X की वैल्यू, see what is happening here. In this, x is going from 0 to 1. X is going from dx, इंटीग्रेशन कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू dx, गोइंग फ्रॉम 0 to 1. दिख रहा है बच्चों? इट इज रिटन इन द स्मॉल फॉन्ट, बट इट इज रिटन 0, इट इज रिटन 1. अगर मैं x को पुट कर दूं secant t, अगर मैं x की जगह पुट कर दूं secant t, it will be wrong because secant t never lies between -1 to 1. समझ में आया? secant t क्या होता है बच्चों? What is secant? secant theta belongs to cos होता है between -1 to 1. secant क्या है? 1/cos. तो वो क्या हो जाता है? या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा. So this actually is -∞ से -1 यूनियन 1 से infinity. ठीक है? So since secant t can never lie between 0 to 1, hence x cannot be put equal to secant t because secant 2 can never lie between 0 to 1. So never do a substitution where the substitution cannot take the values of integration. समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया ये? ठीक है? Clear? Very important points and super chances of silly mistake here.
दैट इज वाई इन टूडेज क्लास आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग दिस, क्योंकि आप मान लो मेरी बात, यहां गलती करोगे ही करोगे. हाँ, तो सारंग इज सेइंग बट यू कैन पुट tan t, ऑफ कोर्स यू कैन पुट tan t. यस सारंग कर सकते हो, क्योंकि tan में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. tan की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, नो प्रॉब्लम. यस यू कैन डू दैट. ठीक है. हाँ, सो प्रणव, इंडेफिनिट की असाइनमेंट कब से मिलेगी बेटा? फ्रॉम वेडनेसडे, फ्रॉम माई नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. आज की क्लास के लिए केवल आर डी शर्मा सब्जेक्टिव जैसी कोई भी एक बेसिक बुक शुरू कर दो बस आफ्टर टुडेज क्लास. ठीक है ना. तो secant इज नॉट द राइट सब्सटीट्यूशन. चलो एनीवेज अब ये करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 से 2 log x dx. सिंपल है, कर लो. दिस इज टू टीच यू बाय पार्ट्स. दिस इज टू टीच यू बाय पार्ट्स. आता है आपको बाय पार्ट्स, मतलब मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, जस्ट टू शो यू हाउ you can do the integration which is definite using the things that you have learned in indefinite. सब लोग कर लो, ये याद होना चाहिए सबको. वैसे log x का इंटीग्रेशन रट लो. log x का इंटीग्रेशन is so much used, you should directly remember it. What is log x का इंटीग्रेशन? x ln x minus x. प्रीतम करो सॉल्व फटाफट, करो सब प्रीतम. हाँ नहीं, वो गलत है, करो फिर से. पारितोष, डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर डेफिनेट, मतलब नेक्स्ट वीक एंड से शुरू हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डोंट वरी. नहीं प्रणव, कल नहीं है, वेडनेसडे को है. वेडनेसडे इज माय नेक्स्ट क्लास. तो इसका कितना हो जाएगा सबको याद ही होना चाहिए. आई विल नॉट वेस्ट टाइम. log x बाय पार्ट्स, ये तो करते हैं ना इंटीग्रेशन, अपन ने किया है, रिमेंबर वी डिड इट. log x dx क्या करते हो? यू थिंक ऑफ इट एज इंटीग्रल 1 इंटू log x. याद है, भूल गए? उसके बाद क्या होता है? आप इसको लेते हो क्या? विच वन इज द फर्स्ट फंक्शन? जिसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो फर्स्ट, जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हो वो सेकेंड. राइट. व्हेन यू डू इट यू गेट x ln x माइनस एक्स. याद कर लो बच्चों, याद कर लो, याद कर लो. Integration log x, please don't waste time in doing it. Always remember it is directly x ln x minus x. छोटी छोटी चीजें हैं बट इससे टाइम सेव होता है. ठीक है. एनीवेज पुट द लिमिट्स 1 से 2 कितना हो जाएगा? 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1 log 1. log 1 कितना होता है बच्चों? 0. log of 1 is 0. all of you know this, right? to whatever base, because a की पावर 0 is 1, right? so आंसर आ गया log 4 upon e, क्योंकि 2 log 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 2 will go up, 2 will go here, it will become log 4 minus 1. minus 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 can be written as log e, because everything is to the base e, because everything is to the base e, right? so log e to the base e is 1, so log 4 minus log e is log 4 upon e. सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, वेरी सिंपल, नथिंग स्पेशल. ठीक जना, पीडीएफ विल बी अवेलेबल बाय टुनाइट. ठीक, आगे बढ़े. चलो, ये तो कुछ नहीं था यहाँ पे. इसके बाद एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट के बाद एरिया अंडर द कर्व, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन. टू योर क्वेश्चन विली रॉबिन्स. नाउ बाय पार्ट से एक और कर लो, ये भी कर लो फटाफट, डू इट. Fast calculation, this is just for your calculation, nothing else. Sonak Mukhopadhyay is saying Telegram में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, प्रॉब्लम हो रही है in downloading it. Then you must be using Jio network. Disconnect yourself from Jio network, connect from some other network. आपका Telegram ज्वाइन हो जाएगा. कभी कभी Jio network के साथ कुछ दिक्कत हो जाती है. Hi Chetan, thank you. ओए यविश, क्या मुश्किल है इसके अंदर? देयर इज नथिंग मुश्किल हियर. अरे बाय पार्ट सिंपल, फटाफट कैलकुलेशन. आई जस्ट गिव यू फॉर फास्ट कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी. सो हरिनाथ हैज गिवन द आंसर. इज इट करेक्ट? वी हैव टू चेक. ऋषि इज गिविंग आंसर -1/2. लेट अस चेक. किसको करोगे बच्चों? यू वांट टू डिफरेंशिएट ln x, बिकॉज ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 1/x. और वैसे भी आपको ये तो याद ही है, याद है.
तो कौन कौन से फंक्शन है आपके पास? लॉगरिथमिक, सही लिखा मैंने ये? आइलेट, ये क्या लिख दिया मैंने? IELTS कहाँ से आ गया? आज ही मुझसे कुछ IELTS एग्जाम के बारे में पूछ रहा था इसलिए। हाँ, तो लॉगरिथमिक एंड एल्जेब्रिक, सो फर्स्ट एंड सेकंड, सो एल्जेब्रिक इज फर्स्ट, लॉगरिथमिक इज फर्स्ट, एल्जेब्रिक इज सेकंड, राइट? जिसको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट, जिसको इंटीग्रेट करना है सेकंड। कर दो उठा के, क्या आ जाएगा? लेट मी जस्ट शो यू द कैलकुलेशन। आंसर आ गया क्या? आंसर क्या आ गया? -12 आ गया एंड हाँ, क्या क्या आ गए? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये कितना हो जाएगा? ln x इंटू x²/2, और ये ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो जाएगा x²/2, ठीक है? सो -x 1/x इंटू x²/2 dx, ठीक है? एवरीवेयर द लिमिट्स विल बी 1 to e, एवरीवेयर द लिमिट्स विल बी 1 to e, राइट? तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 1 to e इस पूरे में मतलब इस इंटीग्रेशन में। अगर कंफ्यूजन है तो लिमिट्स लास्ट में पुट कर देना, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? ln x x²/2 माइनस x²/4, नाउ पुट द लिमिट्स एवरीवेयर। समझ गए? लिमिट्स पुट करने में डाउट तो नहीं किसी को? एल वी एक्सप्लेन। तो इसका आंसर क्या आया? इंटीग्रल 1/e, या 1/e को भूल जाओ, जस्ट टू टेल यू, इंटीग्रल x ln x dx। डोंट पुट द लिमिट्स इन बिटवीन, कंफ्यूज हो जाओगे। इन बिटवीन लिमिट्स मत पुट करना, आई एम श्योर यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? तो क्या करो, सबसे पहले डू द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कितना हो जाएगा? वो आ गया ln x इंटू x²/2 माइनस x²/4। नाउ पुट द लिमिट्स 1 से e। इफ यू पुट लिमिट्स समवेयर इन बिटवीन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? अब पुट कर दो लिमिट्स। सबसे पहले e पुट करेंगे, ln e बच्चों कितना हो जाएगा? 1, ln e इज 1 इंटू e²/2 व्हेन आई पुट e, ठीक है? माइनस e²/4 माइनस, नाउ पुट 1, ln 1 इज 0, ये तो पूरा उड़ गया, सो 0 माइनस 1/4, ठीक है? कितना हो जाएगा? e²/2 माइनस e²/4, तो कितना हो जाएगा? e²/2, राइट? और वो कितना हो जाएगा? प्लस 1/4। दिस शुड बी द आंसर, सॉरी e²/4 प्लस 1/4 शुड बी द आंसर, राइट? सो कंफ्यूजन क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे? वो बीच में कहीं पे लिमिट पुट कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, भूल जाओ लिमिट्स को, पहले उठा के बाय पार्ट्स सॉल्व कर दो। फर्स्ट सॉल्व इट बाय पार्ट्स, वंस यू गेट द फाइनल आंसर देन पुट द लिमिट टू द एंटायर थिंग टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, वरना कुछ तो भी कबाड़ा कर दोगे बाय पुटिंग लिमिट समवेयर इन बिटवीन, अगेन सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए, ठीक? सो योर आंसर विल कम आउट टू बी e²/4 प्लस 1/4। क्लियर? ठीक है? ये गारंटीड बच्चे मिस्टेक करते हैं इसके अंदर भी। सो टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट सम लिटिल छोटू सिली मिस्टेक्स, प्लीज मत करना, ठीक है? कितना बुरा लगता है, आई डिड इट सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ, ठीक है? यू एक्चुअली गॉट अ प्रॉब्लम, यू एक्चुअली सॉल्व्ड इट बाय डिवोटिंग 2 minutes टू इट, एंड देन व्हेन यू चेक द आंसर रियलाइज शिट, ये क्या किया मैंने? अबे यार इतनी सिली मिस्टेक कर दी, गधा हूं क्या मैं? आई हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। आई एम a real case study of silly mistakes. Please don't be like me. I did so many silly mistakes in my life. ठीक है? Not just in problem solving but otherwise also. ठीक है? Anyways, आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about the geometrical interpretation of integration. ठीक है? ये geometrical interpretation होती क्या integration की? चलो समझ लेते हैं. बहुत simply समझाता हूँ. ठीक है? तो देखना ध्यान से. मान लो अपन कर क्या रहे? अपन कर रहे हैं इंटीग्रेशन fx dx. बच्चों इंटीग्रेशन एक्चुअली पता है क्या है? इंटीग्रेशन एक्चुअली समेशन है. इट इज जस्ट अ समेशन. इट इज एक्चुअली इन अ वे यू कैन अंडरस्टैंड इट एज इट इज समेशन ऑफ लॉट्स ऑफ fx
and lots of multiplied by lots of dx when x is going from say a to x is going from b. It is actually summation. इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? समेशन. अगर आपको डाउट है ना, there is a small series which I took on decoding calculus. If you go and search for decoding calculus, ठीक है, just look at its first class where I talked about an example of Newton and वेदन, एक कार्टून बना के वहाँ मैंने समझाया कि इसका मतलब ऐसा क्यों होता है. बट फॉर द टाइम बीइंग इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन. तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं बच्चों? नाउ लुक एट अ ग्राफ. नाउ लुक एट अ ग्राफ. मान लो एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं ऐसा. लेट मी प्लॉट अ ग्राफ लाइक दिस बिटवीन ए एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी. तो बच्चों आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज दिस. आपने क्या किया? किसी भी x के ऊपर एट एनी गिवन x, ठीक है, एट एनी गिवन x, राइट. आपने क्या किया बच्चों? आपने एक रेक्टेंगल लिया. यू टुक अ रेक्टेंगल. द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल बच्चों क्या है? द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज dx. The width of this rectangle is dx, right? And the height of this rectangle is fx. So बच्चों what is fx dx? What is fx dx बच्चों? fx dx क्या हो जाएगा? fx dx will be area of this rectangle. fx dx will be area of this rectangle. अब आप क्या किया? आपने समेशन किया. ऐसे खूब सारे रेक्टेंगल लिए. So सबसे पहले आपने रेक्टेंगल लिया when x की वैल्यू was a. Then you took the rectangle when the x की वैल्यू was a से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे. So basically you are moving this rectangle from left to right, ठीक है, from a to b, and all such rectangles, since dx is very very small, it is just like a simple very patli si line, very slim line, just like that. That rectangle is so small. So when you add all these rectangles from A to B, actually you will cover through these rectangles the entire area. You will actually cover the entire area under the graph. This actually gives you area under the graph, and area under the graph between x is equal to a and x is equal to b. So what is the geometrical meaning of integration? It is area under the graph. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस. बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एरिया अंडर द ग्राफ लिख तो दिया मैंने, बट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता, हैड दिस ग्राफ बीन बिलो एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती? नेगेटिव आ जाती. So this would have been positive. It would have been positive if fx is above x-axis. समझ में आया? ये पॉजिटिव हो जाता बच्चों अगर fx above x-axis होता, और ये नेगेटिव हो जाता बच्चों अगर fx below x-axis होता. अब सुनना ध्यान से, मैं अभी समराइज भी करूंगा. आई विल समराइज इट वंस अगेन. याद रखो बच्चों, इंटीग्रेशन a टू b fx dx एरिया बिट अंडर द कर्व के बराबर होता है. इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, बट when fx is positive, when fx is above x-axis, when fx is above x-axis, integral a to b fx dx is area under the graph. ठीक. बट अगर fx आपका x-axis के नीचे है, if fx is below x-axis, then integral a to b fx dx is actually in magnitude equal to area under the graph, ये एरिया, बट विथ अ नेगेटिव साइन. मान लो यहाँ पे इंटीग्रल a to b आ रहा है आपका 2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2. अगर मैं इसी ग्राफ को मिरर इमेज बना दूं x-axis के नीचे, तो बच्चों इंटीग्रेशन कितना आएगा? इंटीग्रेशन आएगा जिसका वैल्यू कितना होगा? 2, बट विथ अ नेगेटिव साइन -2. सो हियर इंटीग्रेशन इज -2, हियर इंटीग्रेशन इज +2. इन बोथ द केसेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू
what? The magnitude of the area bounded by the graph. Above है तो with positive sign, below है तो with negative sign. I will summarize it. ठीक है, but does it make sense to you guys? So देखना इसको ध्यान से. वही सेम चीज एक्सप्लेन किया. I will not waste time again explaining the same thing here. ठीक है, but important thing to note here is this: fx dx represents area of the region bounded by the curve between fx x-axis ordinates x equal to x is equal to x is equal to b if fx is positive. मतलब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि if this is the graph, this is the graph, this is the x-axis, this is x is equal to a, this is x is equal to a, this is x is equal to b, right? So language पे ध्यान दो बच्चों. What is the language? What does the language say? Language says integral fx dx represents area of the region bounded by the curve. Bounded by what? Bounded by y equal to fx, bounded by y equal to fx, and the ordinates x is equal to a, ordinate x is equal to b and x-axis. इन सबसे bounded fx x equal to a, x equal to b, x-axis, इन सबसे bounded जो region है उसका जो एरिया है that is equal to, this is equal to integral fx dx between a to b, area bounded by the curve. but ऐसा कब होगा बच्चों? when fx is positive. when fx is above x-axis then area is equal to integration. area equal to integration if the graph is above x-axis. but the area will be if the graph is below x-axis ना बच्चों. अगर ग्राफ यहाँ C to B चले जाऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों? if fx is less than 0, if fx is below x-axis, then fx dx, integral fx dx a to b does not represent area of the region bounded by the curve x-axis and ordinates equal to x is equal to x is equal to b, right? तो क्या कहना चाह रहा है बेसिकली? वो ये कहना चाह रहा है, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है इसलिए फोकस कर रहा हूं. कैन यू सी इट? ये है, इसका एरिया मान लो कितना आ रहा है? मान लो ये एरिया बच्चों 2 है. दिस एरिया इज 2. देन यू विल से इंटीग्रल fx dx बिटवीन a to b. बच्चों क्या होगा? 2 होगा. इट इज 2. बट नाउ लुक एट अनदर सिनेरियो. Now let me take another scenario. Now say this is the scenario. Area of this region, ये जो shaded region है ना, इसका एरिया मान लो कितना है? 3 है. किसका एरिया बच्चों? ये shaded region का एरिया. The area of this shaded region is 3. This is x-axis. The graph is below x-axis, right? अब आपसे कोई पूछे इंटीग्रल gx between a to b, बच्चों क्या आंसर होगा आपका? What will be the answer बच्चों? What will be the answer? What will be the answer? अभिषेक says -3. और कोई? मोहम्मद सिद्दीकी says -3. Anyone else? Yes, शांतनु, अमनदीप, yes बच्चों -3. वेरी राइट, वेरी राइट. तो बच्चों इसका मतलब कैन आई से इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ? नो, इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ व्हेन fx इज पॉजिटिव. इंटीग्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एरिया अंडर द ग्राफ इफ द ग्राफ इज कंप्लीटली बिलो x-axis. You are right. So this will lead to one more last concept. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है. अब मैं अगर एक और चीज़ बताऊँ आपको, so let me tell you this. Imagine, let me take this scenario. मुझे बताना आंसर क्या होगा. So let me take a graph. Let me make a graph. Okay. So मान लो एक ऐसा ग्राफ है. एक ऐसा ग्राफ है
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। मान लो मैं आपको एरियाज दे देता हूं, इमेजिन आई गिव यू द एरियाज। मान लो दिस एरिया इज 1, एरिया दे रहा हूं मैं, एरिया, दिस एरिया इज 1, this area is say this area is 2 and this area is say 3 कितना है, 2 ही दिख रहा है, 2 से थोड़ा ज़्यादा मान लो 2.5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ इंटीग्रेशन। इफ आई आस्क यू द इंटीग्रेशन, व्हाट इज माई क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ए से लेके डी fx dx, what will be the integration a to d fx dx? क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या होता है? बिटवीन a to b I can actually write, very interestingly बच्चों, I can write it as, now this is the starting of the next class, इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। I can actually break this a to d as, सबसे पहले जाऊंगा a से b, इंटीग्रल a to b fx dx, फिर जाऊंगा बच्चों B से C, और फिर जाऊंगा बच्चों C से D। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और सबकी वैल्यू आपको पता ही है। आपको क्या क्या पता है बच्चों? व्हाट ऑल डू यू नो? यू नो दैट इंटीग्रल a to b fx dx graph is always above x-axis, integration is equal to the area, it is 1. Now when you go from B से C, integration is negative of the area because the graph is always below x-axis. Clear? तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? This will be -2 and all of you are giving me the right answer. 1.5 will be the answer, but I'm just trying to explain you. And what is the third case बच्चों? C से D, it will be 2.5. तो नेट आंसर बच्चों कितना आ जाएगा? 2.5 plus 1 3.5 minus 2 1.5, which all of you were saying. And this is beginning of our properties. This was actually our property 1. We will learn more about it in the next class. I will end my class today. ठीक है? अक्षर does not matter बेटा. The curve does not touch the axis. It does not matter. Who said that the curve has to touch the x-axis? It doesn't matter. The area bounded by the curve between x is equal to a and x is equal to b, which is a point here. So this area, it need not intersect the x-axis there. समझ में आया? ठीक है, चलो awesome. अगर बच्चों समझ में आया, do press on the like button and I'm ending my class now. And this is also the beginning of the property. अब आपको क्या क्या समझ में आ गया? You understood what is integration? How does integration relate with area under the graph? पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? ग्राफ अगर ऊपर है, इंटीग्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इफ द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आया? अब we'll just end the class and in the next class we will do lots of properties as well. And as I always end the class with बच्चों, किसके साथ? With a smile. Have a beautiful smile on your faces बच्चों. Y is equal to x square, which is always above x-axis. इंटीग्रेट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो मुस्कुराओगे तो all the positives will get keep adding up. ठीक है? सो लाइफ में सारे पॉजिटिव्स ऐड करते जाओ और खुश होते जाओ. बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे. ठीक है, बाय.